You are listening to Radioactive 90.4 megahertz. Get active. I bring people here in front of you who has something beautiful in their mind, in their heart, which may motivate or inspire you, or maybe it's worth listening. I am the host Prithivian, and today I am going to talk to a team of warriors from Hindustan Scouts and Guides who is constantly serving the needy in this pandemic COVID-19. This is a COVID special series. Radioactive is the first community radio of Bengaluru. I am privileged to be part of Radioactive and for this opportunity to become the voice of community. Today's guests are Dr. Saida Nusrat, Vice President, Hindustan Scout and Guides; Ms. Samundeshwari, State Training Commissioner, Guides; Y.T. Anjum, State Training Commissioner for Scout; Mola Ali, Trainer, Scout; Y. Samson, Assistant Trainer. Welcome to ASSO. Now in this time when we are facing very difficult time for our nation, for worldwide, we are facing very difficult time due to COVID-19. Very difficult time. People are suffering. In this difficult situation, what Hindustan Scout and Guide is doing towards the society? The Hindustan Scouts and Guide, under our National Chief Commissioner, Anil Pattam Sirji, under his guidance. So what we are doing means first mass shortage. Every day our Hindustan Scouts and team, there was no garment, no tailors. Themselves they are stitching masks. Per day 500 masks we are stitching and supplying for needy. After, so who you are distributing those? But this laborers. Okay. And like any particular places or like in slums, almost a slum, wherever they trap, wherever who need that. Okay. That needy people, anyone. First we focus on the laborers people. Are you charging for that something or it's a voluntarily you are gifting? Volunteer, just we are gifting, no charge. This is service purely whatever we are from, whatever our pocket money, sir, Hindustan HSG, this one pocket money. So we are spending little bit for mass and all. Every day 500 masks we are be stitching and distributing. Apart from the ration kits and apart from the milk. One day what happened, we all along with the team we went to distribute the this one food packet. Okay, little bit the chili, salt. The 2 and 3 year children can't eat that this one. So when we are along with my team, I went to distribute the 2.5 year, approximately 3 years old child. She hold my dupatta and asked, Auntie, हमें दूध नहीं मिल रहा है, हमको दूध देके महीने हो गए, दिन बहुत दिन हो गए. तो then our team has taken this stuff. Ma'am, why can't we distribute the milk? So I said, it's very good idea. We'll distribute milk for the children. Very difficult time for the kids, no? बहुत दर्द होता है, इतना दर्द होता है कि एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं. वो बच्चों को देख के मन बहुत उदास होता है. हम भी इतने मजबूर हैं कि हमसे जितना हो सकता है हम अब कर रहे हैं. तो हम ऊपर वाले से और भी मांगेंगे कि हमें और भी इतनी देना ताकत कि हम और भी कुछ करें. तो सब लोग मिलके करेंगे तो हम बच्चों के चेहरे पे खुशी लेके आ सकते हैं. दूध के बिना बच्चे मुरझ गए थे. बिस्किट, बैन कुछ भी नहीं मिल रहा था उन बच्चों को. लॉकडाउन होने की वजह से मजदूर लोगों की तो रोजी रोटी रुक गई थी. मजदूर के पास पैसा नहीं कि बच्चों को क्या दे. तो जो भी गवर्नमेंट देते या कोई एनजीओ खाना देते, दिन में 1 या 2 वक्त का खाना देते थे, तो बच्चे नहीं खाएंगे. तो बच्चे क्या खाते हैं? बच्चे तो बहुत बहुत मुरझा गए थे. जैसे हिंदुस्तान स्काउट्स एंड गाइड ने ये डिसीजन लिया कि हमको बच्चों को दूध भी सप्लाई करना है, खाने और राशन किट के अलावा हम बच्चों को क्या ये मेन करना है. तो बहुत अच्छा चामुंडेश्वरी मैडम, अंजुम ने और मौला ने, बहुत सारे हमारी टीम के तरुण और जो सैम, ये सब मैम एक टाइम हम बैठ के मीटिंग किए तो उन्होंने कहा कि मैम वी हैव टू फोकस ऑन फॉर चिल्ड्रन. दे आर हमारी ताकत है हमारी देश की. हम सब लोगों को राइस दे रहे, फूड दे रहे, रेशन दे रहे, बच्चों को कोई नहीं. और के बारे में भी कुछ स्नैक्स के, बिस्किट्स के वगैरह में कुछ भी स्टेप नहीं हम भूल गए बच्चे को. बिल्कुल बच्चों को भूल गए. बच्चे मुरझा गए थे. जैसे हमें भी कुछ होश नहीं था. जब बच्चे ने हमसे जगाया हमको तो हम जागे. बच्चों ने हमसे पूछा कि हमको दूध नहीं मिल रहा है, बिस्किट नहीं मिल रहा है, सुबह उठेंगे तो हम भूखे रहेंगे, कभी एक वक्त सुबह पैकेट आएगी तो शाम में आएगी, हम खा नहीं पाएंगे. तो बच्चों ने हमको जगाया है. तो कहते हैं ना बच्चे खुदा के अरूप भी होते हैं. तो बच्चों ने हमें एहसास दिलाया कि हम बच्चों के लिए कुछ करना है. तो हम उस दिन से जितना हमसे होता है हर दिन हम 200-300 पैकेट लीटर्स के मुताबिक हम दूध दे रहे हैं.
तो उसके बाद हमने मास्क का तो हो गया, दूध का, राशन किट का हो गया, फूड। अभी जो लॉकडाउन होने की वजह से हमको कोई बनाने के लिए कुक नहीं मिल रहे थे, क्योंकि 500 लोगों का खाना बनाना not easy because they will go for the ground level work. तो उन्होंने क्या किया, लास्ट में हमारी टीम ने कहा कि मैम हम खुद खाना बनाएंगे। चलो लकड़ी वगैरह गैस पे तो नहीं बन सकता कि हम 500 हर दिन 500 लोगों का खाना बनाए। लोगों ने तो बहुत साल हो गए थे कैसे लकड़ी का चूल्हा सिलगाए, तो उन्होंने वो भी शुरू कर दिया। घर पे सभी के घर पे एक दिन एक ट्रेनर के घर पे हम चले जाते, 500 लोगों का खाना तैयार करते। जैसे मौला अली के घर में एक दिन चले गए, वहां बना दिया 500 लोगों का। फिर नेक्स्ट डे हम चामुंडेश्वरी के घर चले गए। जैसे कहीं भी अपने घर में ही हम खाना बनाते, वहीं हम अपने हाथों से फूड पैक करते टीम, और हम खुद जाके उन्हें दे के आते कि हमें कुछ चाहिए कि सही लोगों को पहुंचे। आप कैसे डिसाइड करते हो या तो कैसे चूज करते हो एरिया कि किसको चाहिए, कौन नीडी है, कौन सा एरिया में आप? देखिए हम तो यही सर्वे में रहते हैं, हिंदुस्तान स्काउट एंड गाइड सर्वे के लिए जाता है। हमारे 2 लोग जाते हैं कि जैसे रिमोट एरिया, तो इन सभी लोगों को मालूम है कि बैंगलोर में कि कहाँ रिमोट एरिया है। सबसे मेन जो प्रॉब्लम है लेबर का प्रॉब्लम है, तो लेबर के लिए तो कुछ भी नहीं है, रोज उनको कमाना है, खाना है। तो इनकी जिस जगह पे जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन होते हैं, जिस जगह लेबर रहते हैं, हमको पता चल जाता है। हमारे 2 वॉलंटियर जाते हैं, तो वो जगह देख के आके हमको बोलते हैं, तो हमारा पूरा टीम जाता है जाके पहले से हम लोगों से बात करके आते हो? नहीं, देख के आते हैं कि लोगों को खाना किधर नहीं मिल जरूरी है। जैसे कहाँ रिमोट स्लम की जगह है, वही तो स्लम में ही खाना नहीं मिल रहा है। जैसे बहुत सारे हम जाते हैं, वहाँ पे स्लम रहता है, लेबर्स रहते हैं। सुबह हम एक तो आपको इंसिडेंट्स बोलेंगे, सो रियली टच योर हार्ट। हम ऐसे जा रहे थे तो एक बिल्डिंग पे एक औरत सोई हुई थी, खाना 2 दिन से नहीं खाई थी, उसको खाना नहीं मिला था। शी इज ए ओल्ड लेडी ना, वो खाना नहीं खाया। जब हिंदुस्तान स्काउट्स एंड गाइड ने जब खाना बांट रहे थे, तो वो ऊपर से नीचे उतर भी नहीं पाएगी, तो उससे कह रहे थे कि हमारी टीम को कि हमें खाना 2 दिन से नहीं मिला है, तो हम इतनी हालत हो गई कि हम आके आपसे खाना भी नहीं मांग सकते। तो हमारी टीम ने देखा, वहां ऊपर जाके हमारी टीम ने जाके उन्हें खाना सब दे के, अभी उन्होंने कहा दिया कि हम हर दिन आएंगे, आपको जितना हमसे हो सकता है करेंगे। तो टीम जा रही है, कोशिश कर रही है, जहां रीच नहीं हो रहा है खाना वहां तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। अभी थोड़ा पहले से अभी थोड़ा ओके है कि अभी लोगों को आने जाने के लिए सहूलत मिल गया, थोड़ा फ्री है, जा रहे हैं। अभी इस वक्त की तो सबसे बड़ी बात यह है कि आधी रात को मुझे पुलिस स्टेशन से फोन आया कि मैडम हमें वॉलंटियर्स चाहिए, कोई वॉलंटियर्स नहीं है। तो आधी रात को मैंने फोन लगाया अंजुम को और चामुंडी को, आधी रात को मैंने भी फोन लगाया कि माफ करना, हम आपको इस वक्त डिस्टर्ब कर रहे हैं, आधी रात का वक्त है, पुलिस से स्टेशन से फोन आया है, वॉलंटियर चाहिए। तो उन्होंने कहा कोशिश करेंगे मैम, आधी रात को है और सुबह 4 बजे जाना है। ऐसे तो रमजान का महीना चल रहा है, बहुत सारे मुस्लिम भी हैं, क्रिश्चियंस भी हैं, हिंदू भी हैं अपनी टीम में, ऐसे समझे कि सारा हिंदुस्तान है एक साथ है। तो राइट ना, तो रमजान इज गोइंग ऑन, तो इन लोग फास्टिंग रहते हैं। तो ये फास्टिंग रह के तपती हुई धूप में पानी की बोतल लेके जो वो पानी बांट रहे हैं, तो मुझे इतना अच्छा लगा, तो मुझे लगा अरे ये अपना हिंदुस्तान है यार, तो बहुत अच्छा लगा। आपका ऑर्गेनाइजेशन हिंदुस्तान स्काउट्स एंड गाइड, being a Hindustani, you are doing super work actually. Thank you. This all incidents बहुत सारे हैं कि क्या क्या ये लोग फेस किया है। So we are thinking to write one story book also about this, how what are the difficulties the people के जो भी मुश्किलात आए हमने देखा है। तो एक इंसिडेंट्स स्टोरी टाइप में है, इतने इमोशनल और इतने मॉरल स्टोरी है। Definitely it will be work if you'll write the story about what are the things we have faced in this COVID-19. COVID-19 will teach us, when COVID-19 will leave, it will leave us, teaching us lot of things. Definitely, ma'am. And especially the new generation, they came, they can sit, they can watch, they can chart anything. Nowadays, internet generation children. But really, I like to salute the parents, Samson and the Tarun parents. Such 18 years children they said go and do the service. Instead of some mother will say, no, you don't go. Corona is there. You should be take care. This one. They said, नहीं, आप देश के लिए जाओ, देश के लिए कुछ करो। तो ऐसे पेरेंट्स के लिए हम सल्यूट करते हैं। So very great parents, those. So people maybe many people have in their heart to serve for the society, but thing is we do not get opportunities. So if people want to join you, want to join hands, yes, where they can contact you?
They can contact me, Mr. Anjum or Mr. Chamundeshwari, or our FB is there, our WhatsApp is there, and open will be mentioned in FB also. Those are wanted to join for betterment of our nation, please join your hand. So anybody need to contribution, let them come forward. Let the service, any service they can give. Correct. So almost all everyone welcome to our HSG. That's really nice. There is no charge, no nothing. Only services ours is there. So we won't demand anything. We want only service. That's really nice. So अंजुम सर want to share, आप जब भी सर्विस दे रहे हो अभी कोविड में, लोग तो बाहर नहीं निकल पा रहे, बाहर निकलने से पुलिस पकड़ता है, बहुत सारा प्रॉब्लम है रास्ते में, रोड में। आप कैसे फेस करते हो? आपको क्या लगता है ये लोग कैसा फील कर रहे हो? लोगों को आई मीन, और देखो देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल। मेरे जैसे लोग हैं, सब कुछ मान के घर में हूँ, खाना बना रहे हो, पोस्ट कर रहे हो, राइट? जी जी, सही बात है। डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल है, जो लोग है, कोई लोग है जो बाहर है, सर्विस दे रहा है। आपको क्या लगता है, आपका एक्सपीरियंस क्या बोलता है? मैडम, सबसे पहली बात हमारा, आई एम वेरी मच थैंकफुल टू आवर वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर सईदा नुसरत जी। सबसे पहले हम लोग तय किए, हम लोग उतरना है मैदान पे, सर्व करना है। अभी सर्व करने के लिए पासपोर्ट चाहिए, अब अब्रॉड जाने के लिए पासपोर्ट। अभी हम लोग ग्राउंड लेवल में उतर के काम करना बोले तो हमारे लिए फर्स्ट जो डिफिकल्टी आई वो मूवमेंट के लिए आई, तो वी नीडेड पास। तो मैडम जी उधर जाके वीवीपुरम के डीसीपी वली पाशा करके है, तो उनके जरिए से क्या हुआ, हमारा पूरा जो टीम था, पूरी टीम के लिए हमारे को पास मिला। हमारे लिए कार का पास मिला, टू व्हीलर का पास मिला, और पर्सनल जाने के लिए, आने के लिए, विदाउट एनीबडी एनीवेयर स्टॉपिंग के लिए एसीपी साहब ने साइन करके दिया, यू हैव द राइट टू मूव एनीवेयर एंड डू द सर्विस करके। तो सबसे पहले ये पास मिल गया। तो हम लोग रिमोट एरियाज में जाके वी स्टार्टेड स्कैनिंग, किसके लिए जरूरत है, किसको खाना आ रहा है, कहाँ पे खाना नहीं आ रहा है करके। और जब लोग हम उधर गए तो बड़े बड़े बिल्डिंग में, अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग स्टॉप हो गया काम, बिकॉज मूवमेंट नहीं है, पूरा लॉकडाउन है। अभी ऐसा हो गया कि इतने सारे आदमी उधर है, 60, 70, 80 आदमी है, कई साइड में 150, 200 आदमी है, उनको खाना नहीं मिल रहा, और उनका मिस्त्री नॉट रीचेबल है, वो उनको कांटेक्ट कर ही नहीं पा रहे हैं। तो हमारे को पता चला कि ये साइड पे इतना आदमी है, ये साइड पे इतना आदमी है करके। तो मैडम क्या बोले, सजेस्ट क्या किए, वी विल वर्क डिफरेंट इन एरियाज। ये एक ग्रुप बना के एक एरिया जाएंगे, एक ग्रुप बना के और एक एरिया जाएंगे। तो वी स्टार्टेड वर्किंग ऑन दोस लेवल्स। अब मैडम जो बोल रहे थे उधर, वो बूढ़ी औरत मिली बोल के, अब उधर खाना पहुंच ही नहीं रहा था। तो हम लोग की जिम्मेदारी हो गई, हम लोग उधर जाके रोज खाना पहुंचाना था। तो हमने एक आदमी को अपॉइंट कर दिया, एक आदमी और एक साथ में पकड़ के बैठने के लिए। तो उधर जाके डेली खाना देने के लिए वो एक टीम बना के, उनका काम सिर्फ यही था, सवेरे, दोपहर में, रात में खाना उस एरिया पे जाके देने का। ऐसे 5-6 एरियाज को हम लोग जीरो इन करें, उधर एरियाज में जाके वी स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर। और वीकली वंस और ट्वाइस वी स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर एज ए टीम। एंड इनफैक्ट इतना एंजॉय कर रहे हैं हम लोग, एक दिन काम नहीं रहा, एक दिन अगर ये हो गया बोला तो हम लोग को समझ में नहीं आता घर पे बैठ के क्या काम करना करके बोल के। सो नियरली वी हैव डन एवरी डे ड्यूटी। इनर पीस मिल रहा है कि इतना सुकून मिल रहा है कि समथिंग कुछ मिल रहा है हमको। जब हम सर्विस कर रहे हैं तो दिल को इतना सुकून लगता है कि कुछ हमको मिल रहा है, वी आर गेटिंग समथिंग, दैट पीस ऑफ माइंड वी आर गेटिंग इन दिस सर्विस। कल मेरे को सब इंस्पेक्टर ने कहा मौला अली ने बहुत अच्छा काम किया, इतना अच्छा वो इसके बोला माइक पे, या इंडिविजुअल तुम्हारा रिकॉर्ड मुझे आया, मौला अली हैज गिवन वेरी गुड कंट्रोल, और इतना कमांड रखा था इस पे। और ये चामुंडेश्वरी इतनी हार्ड वर्क है, इसको सैल्यूट है इसकी हार्ड वर्क पे। कभी भी बोलो 500 आदमी का खाना अकेली बनाती है सर। मुझे क्वेश्चन आया था कि 500 लोगों का खाना कैसे तैयार करते हैं। 250 2 वेसल इधर रखती है, इधर से फटाफट इधर बनाती है, इधर बना देती है। और इसकी फैमिली तो इतनी सपोर्टिव है, हस्बैंड भी, उसकी डॉटर इन लॉ और उसका बेटा, पूरा मेरे पास फोटो यहाँ आपको शेयर करूंगी, वो पूरी फैमिली पैक करती है। बहुत अच्छी फैमिली है इन सब लोगों की। तो
मुझे आपका नंबर अंजुमिल का नंबर दे दीजिए, कभी अभी मैं शेयर कर लूंगी. आई जस्ट वांटेड टू आस्क वन मोर थिंग. समुद्र मैडम को पूछना चाहती हूँ. आप many people, many organizations are distributing food, coming out in the street to help people, needy people. या सबको मिल रहा है खाना. आपको क्या लगता है अभी भी सिचुएशन कैसा है? कि yes ma'am, even many organizations are coming forward, but even then I think it is very less. मतलब जरूरत हमारा इतना ज्यादा है, जरूरत ज्यादा है, लेकिन जो दे रहे हैं वो कम है. ओके. और फुलफिल करना है बहुत ज्यादा. हमारा मतलब लोगों का जरूरत है बहुत ज्यादा है कि लोग रिच नहीं हो पा रहे हैं. यस, दैट इज ट्रू. और लोग फॉलो कर रहे हैं वट एवर आवर अथॉरिटी इज टेलिंग अस, डोंट गो आउट, वेयर मास्क. आप लोग रास्ते पे रहते हो, सर्विस देते हो, तो आप लोगों को क्या लगता है लोग फॉलो कर रहे हैं? नहीं, जहाँ हम where we go and we are distributing the food, we take mask along with us. So we make them stand in a line. We see who's not having mask, we provide mask for them. Then we continue further, we do our services. आपको क्या लगता है लोगों को हॉस्पिटल सर्विस का भी जरूरत है? बहुत सफर कर रहे हैं क्योंकि कोविड-19 की वजह से जो डायबिटिक्स पेशेंट है, जो डायलिसिस पेशेंट्स है, बहुत सफर कर रहे हैं कि उन्हें कहीं हॉस्पिटल में डॉक्टर्स रेडी नहीं है क्योंकि उनको कोविड के मरीज की इलाज करना पड़ता है. बहुत सारे तो बहुत सीरियस हो गए, बहुत सारे ऐसे हैं जो चले गए, जान चली गई बहुत सारों की. अभी हमारे यहाँ ही हमारे जो ट्रेनिंग में जो हमारे वॉलंटियर्स हैं वो भी हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं. इस पे डायलिसिस के पेशेंट्स भी हैं, तो शुगर पेशेंट जो ज्यादा हो गई उन्हें, और दिल के मरीज के बहुत है, हार्ट अटैक आए हैं. तो बहुत सारे को सहूलत नहीं मिल रही है क्योंकि डॉक्टर तो पूरा ध्यान इस पे गया है, कोविड-19 के पेशेंट पे गया है. इसकी वजह से बहुत सारे पेशेंट सफर कर रहे हैं, ओल्ड एज के हैं, उन्हें बहुत मुश्किल हो रही है. उन्हें कहीं बाहर छोड़ भी नहीं रहे, कहीं फंसे हुए हैं. मतलब अपने रूटीन डॉक्टर से चेकअप के लिए भी नहीं जा सकते, जिसके पास मेडिकल रिकॉर्ड भी नहीं रहता कि वो क्या सफर कर रहे हैं, मतलब उन पे क्या ट्रीटमेंट दिया जाए. तो इस कोविड-19 ने तो सभी को हिला के रख दिया है, खास करके मजदूरों और जो बीमार लोगों को बहुत टफ है. तो ऊपर वाला ही इसका सोल्यूशन निकालना है. बहुत करने गवर्नमेंट ने भी बहुत कुछ किया है, कर भी रही है, लेकिन ये मामला तो इतना बढ़ते जा रहा है कि अभी ऊपर वाले के हाथ में है कि वो हम सभी को कोविड-19 से छुटकारा दे दे. all will pray, all will follow the rules, regulations. फॉलो कर रहे हैं, ऑलमोस्ट ऑल फॉलो कर रहे हैं. 80% they are be following. When that government will give the little lenience, automatically it will be going. तभी डिसिप्लिन चल जाता है. जैसे हर एक को अभी छूट लगी है जाने की, तो वो उस समय में थोड़ा जाता है, लेकिन जैसे भी रूल्स 80% हर लोगों ने फॉलो किया है. जैसे अभी दुकानें खुली हैं तो उसकी वजह से थोड़ा भीड़ भाड़ हो गई, फिर भी दुकान बंद करते इतनी ही 40 दिन तो बंद था, अभी और कर दिया. अभी देखिए रिसेंट अभी जैसे सब कुछ बंद हो गया था, राशन की दुकान से सब कुछ, चाय की दुकान से सब बंद हो गया, शराब की दुकानें ओपन हो गई. जैसे ही ये शराब की दुकान ओपन हो गई तो आपको पता है कि डिसिप्लिन का तो पूरा चिकना चूर हो गया, धज्जियां उड़ गए. तो डिसिप्लिन क्या है पता नहीं लगा लोगों को. शराब के लिए ये के ऊपर एक चढ़ के शराब देना शुरू हो गए, तो गवर्नमेंट ने ही तंग आके थोड़ी जगह तो बैन कर दी. ये शराब की दुकानों की वजह से डिसिप्लिन चला गया और लोगों में भीड़ भाड़ जमने की वजह से और कोरोना पॉजिटिव भी निकल गए. तो ये एक मुश्किल आई थी इन बिटवीन. ये थोड़ा और उसको टाला जा सकता था. ये एक वजह से यहाँ पे हमारी हम लोग भी शायद जनरल पीपल भी, हम सिटीजन भी थोड़ा केयरफुली रह सकते थे. बट व्हाट एवर इट इज, नहीं, शराब चीजें ऐसी है ना, किसको काबू में रखती है. वो भी 40 एक महीना तो पिया ही नहीं, जैसे खोल दिया तो बताइए किसके काबू में. जो पीने वाले के काबू में तो नहीं रहता है. खत्म, वो कहते हैं ना अपने आप खत्म उठे, मैं खाने के तरफ अपने आप कदम उठे, तो अपने आप कदम उठ जाते हैं. जब नहीं था तो किसी के कदम नहीं उठे, कंट्रोल में ही था. तो पीने वाला भी मैं खाने को तकते रहते थे कि शराब खाना कभी खुलेगा. अभी आप बोल दिया तो उठे कदम, हम तेरे दर पे सनम चले आए लेके भरम अपना हम चले आए. दिस इज द वन थिंग. तो चलिए देखेंगे ऊपर वाले से. What is your future plan now? What HSE want to do towards the needy people right now? Step by step whatever they need, step by step we have covered that. For the mask we covered, for the food packet, for the ration bag we covered almost how much it possible. Now
The police people are calling for our service. They saw our service, how Hindustan Scouts and Guide is giving a fabulous service. The police people call from any police station in the midnight and the night, day, we don't know, anytime the call will come, madam, please, we need your service, please send your volunteers, please send your people. So that will be waiting for any time the call will come for service. So any time the people will be, has to be ready 24/7, they have to ready to give the service. Mr. Anjum has went to some Malur for the passenger train or something there whole day. Again in midnight I called, he came midnight. Anjum, like this situation is there, see you have to come along with your team. He said yes ma'am. So then along, now Chamundi madam said, madam, they want food packets. Nobody are there to cook. And they started with, along with the family, 500 food packets. They prepared within 4 hours they had cooked, and they supply 500 food packets for these laborers. And there also they supply juice, everything. So now we started one now thing, now little bit relief is there. तो थोड़ा सा सांस ले रहे हैं. सुबह के 7 से शाम के 7 बजे थोड़ी दुकानें खुलेगी, उतनी दिक्कत नहीं है, अब चीजें तब मिल रहे हैं. तो अभी हमने एक निर्णय लिया है कि एवरीडे ये 500 वाला मास्क चलता रहेगा. ये रिमोट एरिया पे हर जगह मास्क डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा एवरीडे. समझिए ये जो है वो 10, ये 100, वो 100, ये 50 ऐसे लेके डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे जगह जगह डिफरेंट एरिया पे. और इसके बाद हमें पुलिस, तो कभी भी पुलिस स्टेशन से कॉल आएगा कि ये लेबर्स को वहां तक पहुंचाना है इनकी सर्विस के लिए, तो ये लोग इसके लिए हैं. तो आगे देखेंगे, कोविड हट जाए. अभी बस इतनी गुजारिश ऊपर वाले से है कि इस कोविड को लोग ठीक हो जाए, हटा दे, सिचुएशन आ जाए. बिल्कुल. तो सर्विस के लिए तो तैयार है, कभी जब तक ऊपर वाला सांसें रखेगा. हम हिंदुस्तान स्काउट्स एंड गाइड में जमे हैं, अपनी सर्विस लगाएंगे. पता नहीं आने वाला समय हमें भी क्या कब आएगा, पता नहीं. हम तो 24/7 हम तो घिरे हुए रहते हैं. लॉकडाउन होने की वजह से हमने कभी अपने आप को बंद नहीं किया, हम सर्विस के लिए चले गए. सभी को हम कहते हैं कि अपने घरों में रहो, अपने घरों में रहो, बट हम ही अपने घरों में. जिस दिन लॉकडाउन हुआ है तभी से, उस दिन डे 1 से हम अपने घर में नहीं रहे. कभी कभी हमको भी डर लगता है, घर में जाए तो हमारे भी बच्ची आए, फैमिली है, कहीं हमको कुछ हो गया कोई बात नहीं. घर पे फैमिली कभी डर भी लगे रहता है. तो कभी बच्चों को जाके हक कर नहीं कर सकते हम, तो पूरा उसका ये लेके प्रिपरेशन पूरा ये होके हम उनको बच्चों को हक करना पड़ता है. कभी बच्चे आ जाते हैं माँ बोल के, तो हम कहते हैं बेटा दूर रहो, क्योंकि हमको भी फैमिली हर एक कुछ डर रहता है कि हमारी फैमिली को कुछ ना हो जाए. बस हमें कुछ हो जाए कोई बात नहीं, ऊपर वाला सर्विस किए, सर्विस करते करते हम समझेंगे कि हम अपने सर्विस में ही अपनी जान दे दी. देखेंगे कि इतना ही कि अभी कोविड-19 ही ना रहे, बस इतनी सबका प्रे है. मैडम, एक्चुअली अभी क्या हो रहा है, इस बार हम लोग तय किया है सब मिलके कि इस बार ईद नहीं मना रहे हैं. हमारा कपड़े का पैसा, हमारे बच्चों का कपड़े का पैसा, हमारे वाइफ का कपड़ों का पैसा सब इकट्ठा करके डाल के हम लोग पैसा जमा करके पूरा जितने भी HSG में है सब वो पैसा डाल के हम गरीबों में बांटेंगे, कुछ खिलाएंगे, पिलाएंगे, दूध लेके देंगे करके तय करके हम लोग उधर स्पेंड कर रहे हैं इस बार ईद का पैसा. It's really wonderful talking to you and your team, and I am privileged that you are, you have given your time to me to talk and give your detail what you are doing. It's really wonderful. Thank you. So we are also very lucky to have like you people in the family. So we think you are part of our family. Thank you so much. Thank you. You are listening to Radioactive 90.4 MHz. Get active.